اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت زیادہ عظمتوں، رفعتوں، شانوں اور بلندیوں کا بیان فرمایا ہے، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کی عظمت کا بھی بیان فرمایا ہے۔ حضور کے علم پاک کو جہاں اللہ تعالیٰ نے عظیم کہا ہے نا، وہاں حضور کے اخلاق کو بھی رب کریم نے عظیم کیا ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں، آپ کی خوب بڑی شانوں والی۔ یہ جو اخلاق ہوتے ہیں نا، اس کا ایک ترجمہ رویے بھی ہے، اس کا ایک ترجمہ عادات بھی ہے، اس کا ایک مفہوم ہماری باطنی کیفیات بھی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے، یہ بھی اخلاق کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں۔ میٹھا لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، کام نکلوانے کے لیے بھی بولتے ہیں، کسی کو شیشے میں اتارنے کے لیے بھی بولتے ہیں۔ فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں، بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے۔ جو انسان کے باطن میں ہو وہی اس کے ظاہر میں ہو، یہ اخلاق ہے۔ حلم، بردباری، درگزر، محبت، خلوص، خیر خواہی، لوگوں کی بھلائی چاہنا، یہ ساری چیزیں اخلاق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نا دنیا میں جو آیا ہوں تو میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنے حسین اور اعلیٰ اخلاق تھے ان سب کی تکمیل فرما دی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا کہ یہ جو اخلاقی رویہ ہے نا انسان کا، یہ کس قدر زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور کس قدر زیادہ یہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد یاد رکھیے گا، کریم فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق کی بدولت انسان دن کو نفلی روزہ رکھنے والے اور رات کو نفلی عبادت کرنے والوں سے بھی زیادہ درجہ پا جاتا ہے۔ یعنی نفلی عبادات جو لوگ کرتے ہیں اور نفلی روزے جو لوگ رکھتے ہیں وہ بڑی فضیلت والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر اخلاق اچھا ہونا تو وہ جو فضیلت قائم اللیل کو اور صائم الدہر کو نصیب ہوتی ہے، وہ فضیلت اللہ اچھے اخلاق والے کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ ہمارے رویوں کے اندر اور ہمارے مزاجوں کے اندر نا آہستہ آہستہ تلخی آ گئی ہے۔ حالات کی تیزی نے، مشکلات نے، اس زمانے کے اتار چڑھاؤ نے، ٹوٹتی بکھرتی سوچوں نے، طرح طرح کی باتیں ہم سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، اس گفتگو نے، سیاسی اور حکومتی لیول پر لوگوں کے رویوں نے، اور پھر مہنگائی کی شدت نے، بعض لوگ حالات میں پستے ہیں تو آہستہ آہستہ طبیعتیں تلخ ہوتی ہیں۔ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی بھی بڑی آسانی میں زندگی گزار رہا ہے اور فلاں بھی بڑی موج میں ہے، تو ان کے طبیعتوں اور مزاجوں کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بعض اوقات جذبات ٹھیک نہیں رہتے۔ حالات انسان کے رویے کو تلخ کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، ہمیں یہ غور کرنی ہوگی کہ سب سے سخت ترین حالات اگر کسی نے دیکھے ہیں تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے دیکھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سخت حالات کا مقابلہ کیا، حالات کی شدت۔ وہ اپنے جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے، انہیں جب بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ان کے رویوں کے اندر تلخی، ان کے لب و لہجے کے اندر شدت، ان کا مخاصمانہ مخالفانہ انداز، اس سب کو محبوب برداشت کرتے، اور اس سب کے ہوتے ہوئے بھی حضور مسکراتے، اس سب کی موجودگی میں بھی
नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरा नूर पर मुस्कुराहट रहती। आप कभी गौर फरमाए ना, मक्का मुकरमा के 13 साल क्या सख्त मुखालफत की कुफार ने, फिर हुजूर मदीना तैयबा में आ गए तो कभी बदर की जंग है, कभी ओहद की जंग है, कभी खंदक का मार्का है, कभी काफिरों की साजिशें हैं, कभी मुनाफिकीन की शरारतें। ये सारे दुख भी महबूब ने देखे। आपकी विलादत मुबारका से पहले वालिद गिरामी विसाल कर गए। उम्र मुबारक ज़ाहिरी तौर पर ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी कि वालदा तशरीफ़ ले गई। दादा प्यार करते थे, रुखसत हो गए। मोहब्बत करते थे चचा, एक वक्त पर वो भी दागे मुफारकत दे गए। वफादार और प्यार करने वाली ज़ौजा जनाब खतीजा भी बिछड़ी। महबूब ने अपनी शहजादियों को भी अपने दस्ते मुबारक से मुकद्दस कब्रों में उतारा। लेकिन सहाबा फरमाते हैं, इन सारे दुखों के बावजूद हमने इतना मुस्कुराते हुए भी किसी को नहीं देखा जितना मदीने वाले महबूब मुस्कुराया करते। हम लोगों ने ना, यानी एक आध तकलीफ होती है लेकिन रवैया इतना तल्ख होता है कि बच्चों से प्यार करना भी भूल जाते हैं। हालात सिर्फ कारोबारी खराब है, सेहत भी ठीक है, दोस्त भी मौजूद हैं, घर बार भी मौजूद है, लेकिन हम शफकतें करनी भूल जाते हैं। एक आध तकलीफ को, एक आध दुख को, एक आध परेशानी को सर पे सवार करके सारे अखलाकी रवैयों को दफन कर देंगे, सारी चीजों को मिलिया मेट कर देंगे। और कुछ लोग, एक बड़ा जबरदस्त फलसफा भी हमने बयान करते हुए देखे। वो कहते हैं जी मैं चूंकि बंदा खरा हूं लिहाजा मैं तल्ख हूं, मैं सच बोलता हूं इसलिए लोगों को कड़वा लगता हूं। तो मैंने कहा जनाब सच नहीं कड़वा, आपका रवैया ही कड़वा है। सबसे ज्यादा सच रसूल रहमत ने बोला है, पर इतना मीठा करके बोला है कि लोगों की रूहों तक उतर गया है। आपका अंदाज ठीक नहीं है और आप एक नया फलसफा घड़ रहे। लबो लहजे में हुस्न हो, खूबसूरती हो, तकलीफें आई जाती। हुजूर अलैहिस्सलाम ना गुजर रहे हैं, ये सही बुखारी में हदीस है। सुर्ख धारीदार चादर महबूब पाक ने ना मुकद्दस कंधे पे रखी हुई। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी, वो फरमाते हैं कि हुजूर गुजर रहे थे तो पीछे से एक बद्दू आया, तो उस शख्स ने ना पीछे से पकड़ के चादर मुबारक को खींचा। तो फरमाते हैं मैंने खुद देखा हुजूर की मुकद्दस और नाजुक गर्दन पर निशान पड़ गया, तकलीफ दी उसने। फरमाते हैं यूं पलट के महबूब ने पीछे देखा ना तो कहने लगा या रसूलल्लाह मैं कुछ मांगने आया था। दरवाजा जो हमारा जोर से खटखटाए उस फकीर को खैरात नहीं मिलती। कहते जा दौड़ जा, तू कोई कर्ज लेने आया। चादर मुबारक को पकड़ के खींचा, मुकद्दस गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गया। महबूब ने पलट के देखा और जब कहा ना मैं कुछ मांगने आया था, तो ये है वो मकाम जो समझने वाला है। इस तलखी पैदा करने वाले माहौल में भी जब मेरे करीम ने पलट के देखा तो रसूल रहमत ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर मुस्कुराए। और एक रवायत में यूं है कि महबूब ने फरमाया ये जो दो पहाड़ियों के गिर्द बकरियों का रेवड़ खड़ा सारा इसे दे दो। तो तलखी लोग करेंगे ही। आपको बड़े सारे लोग मिलेंगे जो मिजाज के अंदर तलखी पैदा करेंगे। हमने लोगों को देखा है वो करते हैं। 95% और 99% प्यार करने वाले भी मिलते हैं। अगर कोई एक आध सिर्फ तलखी करने वाला मिल जाए तो वो तो वैसे भी होना चाहिए, नहीं तो नजर ही लग जाती है। तो आपको थोड़ा थोड़ा चीजों को समझना चाहिए, लेकिन हर बात में नाराज हो जाना, हर बात में परेशान हो जाना, हर बात में उलझ जाना, हर वक्त नाराज रहना। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आपका एक मुरीद आया का हजरत आप हमें हमेशा माफ करने का सबक देते हैं, आप हमेशा दरगुजर की बात करते हैं और लोग बड़ी तकलीफ देने लगे। हुजूर आज के बाद जिसने हमारे रास्ते में कांटे बिछाए ना, हम भी उसके रास्ते में कांटे बिछाएंगे।
तो हज़रत सुल्तानुल मशाइख फरमाने लगे, आधे रास्ते में उसने कांटे बिछा दिए और बाकी आधे रास्ते में आपने बिछा दिए तो सारी सड़क तो कांटों से भर जाएगी, ये तो राहगीरों के भी पैर जख्मी होंगे। वो चुप कर गया। आप फरमाने लगे, अपनी लड़ाई में सारी दुनिया का नुकसान क्यों करते हो? हुजूर फिर क्या करूं? फरमाया, उसे बिछाने दे, वो बिछाता जाया करे, तू निजामुद्दीन के पास आता जाता है, तू उठाता रहा कर। कुछ लोगों को कांटे उठाने की भी तो ड्यूटी करनी चाहिए ना। हमारा ये मिजाज बन गया है कि तलखी ही तलखी, परेशानी ही परेशानी, दुख ही दुख, हर वक्त उलझे उलझे से, हर वक्त बिखरे बिखरे से, हर वक्त आजमाइश में। ओ भाई, प्यार करे, मोहब्बत करे, लबो लहजे को बावजू रखे, जरा दूसरों के साथ अंदाज शफकत वाला बनाए। यार कभी तो ऐसा हो ना कि आपके साथ वाकई को तलखी कर गया है, पर आप कहें यार फिर क्या, मेरी कौन सा कोई शान है, कोई कर गया बात तो फिर क्या हुआ, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी। कभी कभी ऐसा होना चाहिए ना, मतलब वो फलाना भी मेरे खिलाफ गल फिर की है, जे किसी गल कर ले, एडा पाकीज़ा बन के बहने दी लोड़ की है। मैं मिस्कीन पुराना खादम, इते किसे दर मिली न टोई, इते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ वासफ ही हुई। किसी वक्त इंसान को थोड़ा सा ना जमीन पे भी उतरना चाहिए। यानी कुछ बंदे ना बोलते हैं लफ्ज, कहते तू मैनू जानदा नहीं, सुभान अल्लाह। मसलन की हो जी, तुसी ये तो अनु जान लइए तो की होएगा, मसलन क्या हो जाएगा? छोड़े, आप किस चक्कर में पड़े हुए। आजिज़ी, इनकिसारी, रवैयों की मिठास। मुलाजिमीन के साथ हमारा क्या रवैया होता है? बहुत सारे मुलाजिम दुआएं नहीं मांगते, या अल्लाह मेरी जान छुड़ा दे, इल्ला माशाअल्लाह। सब नहीं, अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज्यादातर की बात करता हूं, लोग बड़ी तकलीफ नहीं महसूस करते। और फिर मुलाजिम अगर कोई ऐसा हो बेचारा जिसका घर बार कोई ना हो, कुछ तो चलो तलखियों से बचे, पर 5 बजे तो घर चले गए ना। और अगर किसी का घर भी कोई ना हो, फिर रहना पड़े तो कितना मुश्किल होता है। लेकिन ये आम दुनिया का रिवाज है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह के रिवाज थोड़े अनोखे हैं, थोड़े अंदाज हट के, जरा कायनात से अलग करके मेरे करीम का माहौल है और करीमाना है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन में बिछड़ गए थे अपने घर से, किसी ने मक्के ला के बेच दिया था। फिर वो बिकते बिकाते सैयदा खतीजतुल कुबरा तक पहुंचे। आपने वो सारी दास्तानें सुनी हुई हैं कि मक्के के लोग और अरब शरीफ के लोग दौरे जahलियत में अपने गुलामों के साथ क्या सलूक करते थे, किस तरह उन्हें मारते पीटते थे। अगर गुलाम ने जानवर धूप से खोलकर छांव में नहीं बांधा तो मार पड़ती थी, क्यों नहीं बांधा? और अगर किसी वक्त उसने बांध दिया तो कहा तूने पूछा ही नहीं, तू इतना मर्जी का मालिक हो गया, अब अपनी मर्जी करेगा। हर वक्त तकलीफ थी गुलामों को। लेकिन कुर्बान जाए, हजरत ज़ैद बिन हारिसा सैयदा खतीजा की बारगाह में पहुंचे। जब वो मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम के निकाह में आई तो हुजूर की खिदमत में आ गए। उन्होंने बड़े आका देखे थे, पर जब आए ना रसूल करीम के हुजूर, जब आए ना नबी पाक की बारगाह में, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूं तुझे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। किसी ने ना पीछे बताया उनके वालिदैन को, उनके आइज़ा को, उनके चचा को कि हमने तुम्हारे बेटे को देखा है, वो मक्का मुकरमा में है, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हमने देखा है। उनके चचा और वालिद ना कीमत लेके, जो उस दौर में गुलाम की कीमत होती थी, वो कीमत लेके मक्के आए।
ये हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले का वाक़या बताते हैं सीरत निगार, कहते हैं वो हुजूर की बारगाह में कीमत लेके आए और अर्ज गुजार हुए ये कीमत ले ले और हमारा बेटा हमें दे दे। चचा और वालिद। नबी करीम मुस्कुराए, फरमाया मैं ज़ैद को बुलाता हूँ, अगर तुम्हारे साथ जाना चाहे तो पैसों की जरूरत नहीं। चचा ने बाप की तरफ देखा और बाप ने चचा की तरफ देखा, भला गुलामी नहीं छोड़ना चाहेगा, भला घर नहीं जाना चाहेगा, बिछड़ा हुआ नहीं जाना चाहे, ये कैसे हो सकता है? गुलाम तो तड़पते हैं कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, खुदाम तो मुलाजमत छोड़ते हैं किसी तरीके से मैं निकल जाऊं। लेकिन ये फितरत का अनोखा अंदाज और कुदरत के अजीब रंग कि इस जमीन ने ये मंजर भी देखा, इस आसमान ने ये नजारा भी किया कि मेरे करीम ने फरमाया बुलाओ ना ज़ैद बिन हारसा को। हजरत ज़ैद बिन हारसा आए तो फरमाया पहचानते हो कौन है? या रसूलल्लाह मेरे वालिद है। पहचानते हो कौन है? हुजूर मेरे चचा है। मिलो ना। दौड़ के गए, वालिद और चचा से बगलगीर हुए, मोहब्बतों का तबादला हुआ, आंसुओं से एक दूसरे से मुलाकात हुई, रंग ढंग बदल गए। जब थोड़ी देर के लिए दिल हल्का हुआ ना तो महबूब फरमाने लगे, वो खड़े थे हजरत ज़ैद बिन हारसा अपने चचा और वालिद के पास, महबूब फरमाने लगे आपके वालिद और चचा लेने आए हैं, अगर जाना चाहे। इधर देखो यार, अगर आप जाना चाहें। हुजूर ने फरमाया अगर आप जाना चाहें तो पाबंदी कोई नहीं, जा सकते हैं। हजरत ज़ैद दूर खड़े थे, दौड़ के आके कदमों में बैठ गए। वो देखो ना बरेली के इमाम बोले, कहने लगे तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, और तेरे टुकड़ों पे पलू गैर की ठोकर पे न डाल। मैं झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा। कि या रसूलल्लाह सारी बातें आपकी ठीक है, करीम जो आप फरमाए दुरुस्त है, वालिद भी आ गए, चचा भी आ गए, पर हुजूर मैं आपका दरवाजा छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। ये मेरे करीम के अखलाक की बुलंदी, किरदार की अजमत, लबो लहजे का हुस्न, प्यार व रफ्तगी, शौक, जब तक हमारी तबीयतों में ये मिठास पर। कुछ लोग कहते हैं मैं घर जाता हूं तो मेरे बच्चे सहम जाते हैं। तो मैंने कहा जनाब ये तो आपने बड़ी अजीब बात बताई है, यानी बच्चे बाप से भी प्यार नहीं कर पाते, यानी आपके बच्चे आपकी छाती पर भी खेल नहीं सकते। ये क्या आपने रवैया पाया? आपके बच्चे आपसे भी प्यार नहीं कर पाते। और मेरे करीम का हाल ये है कि हुजूर नमाज पढ़ने में जाते थे तो नवासे नवासियां साथ चले जाते थे। छोटे छोटे बच्चे हुजूर के नवासे और नवासियां जब छोटे थे तो साथ चले जाते थे नमाज में भी। ओ भाई, इतनी जल्दी रवैयों को तलख करना, नाराज रहना, परेशान रहना, हर वक्त शिकवे करना, हर वक्त दोखी सुनाना। कुछ लोगों को ना जिंदगी में जब भी तजर्बा होता है तलख ही होता है। वो जब भी आपको बात सुनाएंगे कहेंगे यार दुनिया बड़ी खराब हो गई। तो मैं कहता हूँ नबी पाक की इतनी शानों वाली उम्मत है, आपको अच्छे लोग ही नहीं मिल रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी, तो आपको खैर वाले लोग ही नहीं मिल रहे। ये इतनी अजीम उम्मत नबी करीम की, तुम्हें सहरी के वक्त, तहज्जुद के वक्त बुजुर्ग उठ के मस्जिदों में जाते नजर नहीं आते? तुम्हें जवान जवान स्याह दाढ़ियों वाले मस्जिदों की सफों में दिखाई देते नजर नहीं आते? ये सैलाब आया है, किस तरह जवानों के जज्बे हमने देखे हैं, लोग निकले हैं। हम हाजिर हैं, हमें बताएं। ये फलस्तीन पर जुल्म हो रहा था, मेरे पास नौजवान आया और रो के कहने लगा पीर साहब बताएं मैं क्या कर सकता हूं उनके लिए। हर चीज हाजिर है। आपको ये निखरे हुए जज्बे नजर नहीं आते? हर वक्त तलख तलख बातों को याद करना है, हर वक्त दुखों को याद करना है। छोड़ो, हर वक्त ये चीजें याद नहीं करते। कभी कभी सारा कुछ भूल के या खुदा की रहमत को याद करें या मदीने वाले के करम को याद करें। आओ इधर आए, करम की बात हो, रहमत की बात हो, अता की बात हो, फजल की बात हो, अल्लाह तबारक व तआला की शाने
दरगुजर की बात हो, मालिक के अता करने की बात हो, और फिर इंसान की तवज्जो जाए तो कभी हुजूर के हुस्न जमाल की बात हो, कभी जूदो नवाल की बात हो, कभी आला अखलाक की बात हो, कभी महबूब पाक के लिबासे पाक के सादगी और हुस्न और सफाई की बात, कभी देखा जाए कि वो देखें एक तरफ सिद्दीक़ अकबर बैठे हैं, एक तरफ फारूक आजम बैठे हैं, एक तरफ सैयदना उस्मान गनी बैठे हैं, एक तरफ मौला अली बैठे हैं। इन्हीं तारों में, सरदारों में सज संवर के बिलाल हबशी भी बैठे हैं, सुहैब रूमी भी बैठे हैं, अम्मार इब्ने यासर भी बैठे हैं। इन्हीं सरदारों में, बड़े लोगों में लोगों ने देखा हजरत आमर बिन फहीरा भी बैठे हैं, अब्दुल्ला मुजनी भी बैठे हैं। ये चमकता दमकता रंग जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, तो दीदार का आलम क्या होगा। रुकना जरा, भला मैं क्या कह रहा हूं। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, तो दीदार का आलम क्या होगा। जब बिन देखे फिदा है हर कोई, तो दीदार का आलम क्या होगा। तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, वो जब बिन देखे फिदा है हर कोई। और सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे, सुन सुन के सहाबा, अल्लाह करे आपको समझ आए भला मैं क्या कह रहा हूं। सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे, फिर सरवर आलम की यारो गुफ्तार का आलम क्या होगा। फिर सरवर आलम की यारो गुफ्तार का आलम। तो मरहूम आदम चिश्ती ना एक शख्स से कहा था, उसने कहा था तू बातें ज्यादा इसलिए करता है और तू तबसरे ज्यादा इसलिए करता है, तू उलझ ज्यादा इसलिए गया है कि तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा। जिन्नू वेख के चन शर्मावे, जे रखे हथ फुल्लां विच, हथ फुल्लां दा मान वधावे, हथ फुल्लां दा मान वधावे। ते जे कदी जावे सैर गुलशन दी, ते धरती लिफ लिफ जावे। मेरे महबूब के जलवे तूने अभी देखे, मुख चंद बदरशा, मत्थे चमक दी लाट। अब मैं आपको वहां कैसे लेके जाऊं कि तुसी तोड़ गोलड़ा शरीफ ही पहुंच जाओ, पर वो बात कैसे करूं। मुख चंद बदरशा, पीर साहब को जब जियारत हुई ना, मेरा तो यही नजरिया है, जब उन्हें जियारत हुई ना तो उन्होंने एक जुल्फ मुबारक को पेशानी पे देखा। जब उन्हें दीदार हुआ तो अपनी कैफियत बयान करते कहते, मुख चंद बदरशा शानी है, मत्थे चमक दी लाट नौरानी है, ओदी काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, ते मखमूर अखी हैन मद भरियां। अच्छा, खुद ही बात सुना के ना शेर तो खुद ही कहने लगे सुबहान अल्लाह, मा अजमला का, मा अहसाना का, मा अकमला का। और फिर अपने आप को समझाते कहते कित्थे मेहरे अली, कित्थे मेहरे अली, कित्थे तेरी सना, कित्थे मेहरे अली, कित्थे तेरी सना। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, कित्थे मेहरे अली, कित्थे तेरी सना। ये मुश्ताक अखी कित्थे जा लड़ियां। ओ मेरे अजीज, रसूल पाक के इखलाक में जब खो जाओगे ना, जब खो जाओगे ना, ये तो देखना ना, यानी अम्मार इब्ने यासर गुलाम है, सैयदना खालिद बिन वलीद बहुत बड़े सिपा सालार है, शक्कर रंजी हो गई। तो ये जरा गुलामों की तायीद करने का रंग देखना। शान जनाब खालिद इब्ने वलीद की भी खुद सरकार ने बयान की कि ये सैफुल्लाह है, लेकिन नबी पाक ने फरमाया अगर किसी ने मेरे अम्मार से बूझ रखा ना तो रब रसूल को नाराज करेगा। ये जरा देखो ना गुलामों की शान कैसे बुलंद है, ये देखो ना गुलामों के अंदाज कैसे बुलंद हुए। हजरत खालिद इब्ने वलीद फरमाता है मुझे अल्लाह की कसम जब महबूब ने इस गुलाम को ये शान दी तो मेरे लिए अम्मार इब्ने यासर की रजा से बढ़कर कोई और चीज नहीं। वो
दोस्तों नबी पाक के अखलाक का। और फिर देखो हमारे यहाँ भी लोग माफ करते हैं, लेकिन जब बदला लेने की ताकत नहीं ना होती, इल्ला माशाअल्लाह कहते जा मैंने माफ किया, और मेरे नबी ने भी माफ किया। 10,000 का लश्कर, पूरे मक्के के चारों जानिब अल्लाहु अकबर की सदाएं, महबूब तशरीफ लाए तो दबदबा है, तन तना है, वलवला है, सिहाबा के अंदर पूरा एक जोश है। हुजूर तशरीफ ले आए, मक्का फतह हो गया। वो जो कल तक बड़ी तकलीफ देते थे, उनकी गर्दनें झुकी हुई हैं, हुजूर के सामने बैठे, और कुछ खड़े हैं गर्दनें झुकाए। तो करीम फरमाने लगे तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ कौन सा सुलूक करने वाला हूं? एक सुलूक मिस्र में भी हुआ था। जनाबे यूसुफ को कुएं में फेंकने वाले भाई आए थे, और उस वक्त आए थे जब जनाबे यूसुफ बादशाह बन चुके, अमीर सल्तनत है, सब कुछ कर सकते थे, पर कहा भाई भाई होते हैं, जाओ मैंने माफ किया। बल्कि बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है लोग गंदम लेने आ रहे थे ना मिस्र में, कहत हो गया था सब जगहों, तो लोग मिस्र में आते थे गंदम लेने के लिए, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी आए। तो जनाब यूसुफ को पता था कि सारी दुनिया आ रही है, तो आना उन्होंने भी है। तो आपने पता क्या फरमाया? फरमाया बाकी जो बंदा भी आए ना, उससे पूछना क्या लेके आया। चौकियां कायम थी, पूछना क्या लेके आया है और क्या लेने आया। लेकिन जब किनान के लोग आए ना, तो ये पूछ लेना क्या लेने आए हैं, ये ना पूछना क्या लेके आए हैं। पर्दा रखा, पर्दा, भाइयों का पर्दा। भाई फिर प्यारे तो होते हैं, मन्नी दा नहीं, मनना चाहिए भी नहीं, क्योंकि फिर अपने बच्चों के सामने बंदा थोड़ी बहुत गीबत कर बैठा ना, माज़ अल्लाह, अल्लाह माफ करे कि भाई ऐसा है, भाई ऐसा है, भाई ऐसा है, मुझे बड़ा लूटता है। फिर वो बच्चे समझ जाते हैं चीज़ों को कि ये अब इस तरह के मसाइल हैं। फिर किसी वक्त भाई को ज़रूरत पड़ जाती है 2-4 लाख की, फिर दिल करता है कि उसे 3 की ज़रूरत है तो बंदा 5 दे। फिर अपने बच्चों को प्या मुतमिन करता है, कहना मेरे को रोज़ नहीं देन होंगे, मैं 2 को देंगा, इदू वध नहीं मैं देना। अच्छा अंदर से दिल कर रहा है सारे दे दूं, लेकिन वो अब राजी कर रहा है बात भाइयां दे नाल प्यार। तो फिर तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा उनसे ये भी ना पूछना क्या लेके हम भाई जो हुए। ये सुनो ना जरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का से फरमाया पता है मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ? या रसूलल्लाह कौन सा? तो नबी करीम फरमाने लगे वही जो जनाबे यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया, वही सलूक। जाओ तुम पर कोई जबर नहीं। मेरे दोस्तों तलखियों से निकलो यार, नाराजगियों से निकलो, करो ना एक फोन उस रिश्तेदार को जिससे नाराज हो को, यार जा मैंने माफ किया, मेरे नबी का मिलाद आ गया, आज के बाद हमारी दोस्ती है, हुजूर का मिलाद पाक आ गया। करो ना सीने बड़े, खोलो ना दिल, अपनी तबीयतों में शौक लाओ ना, ताकि हुजूर के मिलाद का हकीकी सबक हमारे हाथ आए।